in your textbook. Now we are going to begin our unit 2. But before we start this chapter, I want to ask some questions. Are you ready, students? क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूंगी. So let's begin. Here I have 2 questions and I hope you all know the answers of these questions. बच्चों, आपको इन सवालों के जवाब पता है? आप बड़ी आसानी से इनके जवाब दे देंगे. तो चलिए मैं आपके सामने अपना पहला सवाल रखती हूँ. So my first question is on your screen. What is this? Now look at the picture very carefully. What is this? ये क्या है? What is this, dear children? Do you know? क्या आपको पता है ये क्या है? Calendar. Calendar. Very good. This is a calendar. What is the use of this calendar? Calendar का use क्या होता है पता है आपको? Date देखने के लिए. Dates देखने के लिए. Very nice. इसके अलावा और हम क्या? Days. Days and month also. है ना? Isn't it? Month also. So you are very महीना देखने के लिए. You know very well what is the use of calendar. Now tell me, $12 months are there in 1 year, है ना? Yes. महीने होते हैं? 12 months. 12 months. Do you know the names of these months? Yes. What are they? Will you please tell me? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Yes, correct. Very nice. Now we are going to read one by one these months. Okay? Yes. Now read with these ongoing months. January, February. Children, read with me. January, February, March, May, April, June, May, July, August, September, October, November, and December. These are all 12 months of our Gregorian years. कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं, जो ग्रेगरियन साल होते हैं, उसमें ये 12 महीने होते हैं जिनके ये नाम है. And you have to write down these months or you can take a screenshot. Okay, I am going to give you some few minutes. इसको आप लिख लीजिए. बाद में हमें ये काम आएंगे. आगे जब हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे तो ये सारे नाम जो है हमें याद आने वाले हैं, हमें काम आने वाले हैं. ये सारे नाम जो हमें महीनों के यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनको आप इसी तरीके से लिखिए और इसी सीक्वेंस से लिखिए. 1 by 1 जनवरी टू दिसंबर.
लाइन से हमें बिल्कुल तरतीब से याद होने चाहिए ये सारे नाम, and not only their names but also their spellings are very important कि तुमको उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए. Have you done? कंप्लीट कर लिया आपने, इसको लिख लिया? Yes. No, miss. Okay, then write fast. क्या आपको इन महीनों के नाम उर्दू में आते हैं? नहीं आते हैं. End of lesson, we will try to write these months name in Urdu also. Have you done, student? आपका हो गया पूरा? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay, now we are going to start a second question. Okay, now second question is, this is also not a question, instruction. Name the birds given in the picture. Here I am going to show some pictures. You have to find out their names. Okay, are you ready? Now the first Yes, miss. on your screen. Which bird is this? Sparrow. Very good. This is a sparrow. What is this sparrow? S P B A A. double R O W. Okay. Double R O W. S P A R R O W. Do you know what is the Urdu name of this bird? Sparrow? चिड़िया. Chidiya. चिड़िया. This is a very common bird, sparrow. Now the second picture is here. Crow. Crow. Very good. Crow. Crow. This is a Crow. crow. Read the spelling. C R O W. C R O W. Crow. What is the Urdu name of this bird? कौवा. Kawa. Very nice. Now here I am going to show more pictures. The third one is here. What is the name of this bird? Peacock. Peacock. Very nice. Peacock. What we say in Urdu? More. More. Now read the spelling of peacock. P P E A A C C O C K. K. Now the next one is, look at the picture and tell me the name. Eagle. Eagle. What we say in Urdu? Cheel. Correct, correct. Very nice. What is the spelling of E A G L E. E A G G L E. भी और आगे बढ़ते हैं हम लोग. एक और पिक्चर है आपके सामने. ओके, देखिए इसे Duck. नाम बताइए. Duck. Is it duck? Duck. Look at the picture carefully. Swan. I think it's, yes. It is swan. What is the spelling of swan? S W A N. What we say in Urdu?
What is the Urdu name of this bird? बदक बदक No. हम इसे उर्दू में हंस कहते हैं. ठीक है? Okay. Now look at this picture. This is batak, है ना? We say in Duck. Urdu, what we say in English? Very good. Absolutely correct. Duck. What is the spelling of duck? D-U-C-K. D-U-C-K. Duck. Duck. Now the next picture is in front of you. इसे बहुत अटक रहा है. नेटवर्क इशू होगा. Okay, now look at this bird. आप जानते हैं इसको? Do you know? Now I'm going to show the name of this bird. This word. Cuckoo. 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 This is a bird. Cuckoo. Cuckoo. The Urdu name, and we say in Urdu this bird is koel, and in English we can say cuckoo. Now student, today we are going to learn about cuckoo, and this is a very nice poem. Cuckoo, cuckoo, what do you do? What do you do? कैसे लिखना है? What do you do? This is your poem in your textbook, Unit 2. Now students, listen carefully. I am going to read this poem. You have to listen carefully. And after that, आपको भी मेरे बाद जो है वो repeat करना है इसको. ठीक है? I am going to start reading this poem. Listen carefully. बच्चों आपने सुनी ये पोएम? I am going to repeat this once again. Listen carefully once again. And after that you have to repeat this with me. Okay? Now listen carefully. मैम आपकी आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है उनकी आवाज. Hello, Miss. Now repeat it, student. Sing with me. आपकी आवाज मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है.
मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने सुनी ये पोएम? अभी मैं इसे फिर से स्टार्ट करती हूँ और आप सब रिपीट करेंगे इसे मेरे साथ में, ठीक है? आर यू रेडी? रेडी। ओके, नाउ रिपीट माय वर्ड्स। मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे आपको उसको रिपीट करना है उसी तरीके से, ओके? ओके मैम। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम अगेन. Cuckoo, cuckoo, what do you do? 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 In April I open my bill. 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 In May I sing all day. 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 In June I change my tune. 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 In July away I fly. 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 In August go I must. 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 Okay, this is such a very nice poem. यहाँ पर हम कुक्कू से बात कर रहे हैं और कुक्कू हमें बता रही है कि वो कौन से महीने में क्या काम करती है स्पेशली. Okay, this poem we can see various names of the months. कौन से महीनों के नाम आए हैं इस पिक्चर में वो हम देखते हैं. Before this, we are going to search the meaning words of this poem. Okay, the cuckoo. Now, student, look at the picture. This is a poem. You can see in your textbook. आपको अगर यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर नहीं है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ये पोएम देख सकते हैं. स्क्रीन पर नजर आ रहा है? मेरी इंग्लिश की बुक दो उधर से देना रे. Now, student, today we are going to learn about rhyming words. Something about rhyming words. Can you tell me what do you mean by rhyming words? ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं? कोई बता सकता है मुझे? बहुत सारी पोएम्स में हम अक्सर पढ़ते हैं राइमिंग वर्ड्स ढूंढना है हमको, लिखना है. वो क्या होते हैं राइमिंग वर्ड्स? क्या होते हैं? सेम वर्ड्स. अल्फाज मायने. सेम वर्ड्स. सेम वर्ड्स. और कोई बोलेगा? सेम वर्ड्स. एक जैसे वर्ड्स. एक जैसे वर्ड्स. अल्फाज मायने. ओके ओके ओके. मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं. राइमिंग वर्ड्स आर not only same words but same sound words. Same words is not compulsory but same sound words is called rhyming words. Okay. For example, you can find these
rhyming words at the end of the line. For example, in these two lines, the last word is cuckoo. And what is the last word of the second line? Do. Do. Cuckoo and do. Both the words are rhyming words. बोलने में दोनों सेम साउंड है, एक जैसा है बोलने में. इसे लिखना है. कुकू एंड डू बोलने में दोनों एक जैसा है. So Yes. we can call them rhyming words. Okay. Now find out words in these lines. The next two lines. What are the rhyming words? हमेशा rhyming word हमको लाइन के एंड में ही मिलता है. तो एंड वर्ड्स जो है, जो लास्ट वर्ड्स हैं, वो आपको देखना है. What are the last words of these two lines? First line, the last word is April, and what is the last April, word? Bill. April and Bill. Very good. Bill. April and Bill. Bill. Both the words are rhyming words. Okay, now find out the rhyming words in these two lines. Who will say the rhyming words? May, day. May and day. Day. Very good. Correct. May and day. Both the words are rhyming. And what about the next lines? June, tune. Tune and tune. Very good. Very nice. Now, come on the next line. July, fly. July and fly. July, fly. And Fly. these words are called rhyming words. And look at the last line. Must. August and Must. and must. All these words are rhyming words. Now read the rhyming words with me. Cuckoo. Cuckoo, do. Do. April. April, bill. Bill. May, May. day. Day. June, tune. June. June, tune. Tune. Very good. July, fly. July. July, fly. Fly. July, Okay. fly. And the August, pair must. of rhyming words, August and must. Now read the rhyming words. Who will read these words? Cuckoo. Do. June. Tune. June, tune. The next words are Bill. April, bill. July, fly. July, fly. June, May, Read these day. words. Okay. August, and March. Very good. August, Very good. All these words are called rhyming word. rhyming words. Very good. These are the rhyming words of the poem. Now this is a Which names of months are test. Which names of months are there in this poem? You have to choose the names of months are there in this poem. April, May, June, July, August, September. Okay. The first name of the month is April. April to August. Is it correct? The second one is May. Is it correct? July. The next June, July. July, and then August. इनके अलावा और कोई नाम आए हैं पोएम में? No. Only these 5 months are Notice. Hi student, it's a homework time. You have to write
the names of the months, all the 12 names of the month. तो आपको पूरे 12 महीनों के नाम लिखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो आपने लिखा है ना अपनी नोटबुक में? यस। ठीक है, उसी को लिखना है आपको। तो यहाँ पर तो भी था। ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एक एडिशन है। तो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। कॉपी द नेम्स ऑफ मंथ्स। आपको मैं इन उर्दू alongside। हाँ, बट राइट दिस मंथ्स इन उर्दू अलोंग साइड, यानी आपको सिर्फ इंग्लिश में नहीं, इसको उर्दू में भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं उर्दू में किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। चलो स्टार्ट करें। इंग्लिश में हमने लिखा, अब उर्दू में लिखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मंथ? जनवरी। जनवरी। तो आप जनवरी किस तरीके से लिखेंगे? देखिए ये सही है। हाँ। यस मैम। जनवरी। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट नेम ऑफ द मंथ? फरवरी। 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 फरवरी दूसरा महीना। मार्च। फरवरी। अब मुझे आप साथ ये भी बताते चलिए कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन फरवरी? फरवरी इंग्लिश में फरवरी और उर्दू में फरवरी। कितने दिन होते हैं फरवरी में? 28 या 29। 28 या 29 दिन इन एवरी ईयर। हाँ, हाँ, जनवरी फरवरी। चलो तीसरा नाम बोलो। मार्च। 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 इस तरीके से हम लिखेंगे मार्च, तीसरा महीना है। आप लोगों को नजर आ रहा है ना ये? हाँ, यस। हाँ, फोर्थ मंथ। अप्रैल। अप्रैल। अप्रैल नहीं बोलना है उसको, अप्रैल बोल। अप्रैल, ठीक है। इसको इसी तरीके से लिखते हैं ना? यस मैम। हाँ, अप्रैल। साथ साथ में आप लोग भी लिखते जाइए इसको। यस मैम। चलो पांचवा बताओ मुझे। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ मंथ? मई। मई। इंग्लिश में हम उसको मई कहेंगे और हम उर्दू में उसको मई लिखते हैं और पढ़ते हैं, मई। द नेक्स्ट मंथ? जून। जून। ये जून। जुलाई। जुलाई। The seventh month of this year, जुलाई। जुलाई। क्या मैं सही लिख रही हूँ? आप लोगों को नजर आ रहा है? यस मैम। हाँ बिल्कुल, जुलाई। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? अगस्त। अगस्त। उर्दू में हम इसे अगस्त कहेंगे। ओके, अगस्त। व्हाट इज द नेक्स्ट? सितंबर। सितंबर। उर्दू में हम क्या कहेंगे इसे? सितंबर। सितंबर है ना? उर्दू में हम इसे सितंबर कहेंगे, सितंबर नहीं, सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर नहीं बोलना है बच्चों इसको। अक्टूबर इंग्लिश में अक्टूबर, एम नहीं है वहां पर, अक्टूबर। और उर्दू में हम उसे अक्टूबर कहेंगे। अक्टूबर कहा? अक्टूबर बोलो इसको, अक्टूबर। अक्टूबर। हाँ, और इंग्लिश में बोलो उसको अक्टूबर। 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 एंड द सेकंड लास्ट मंथ इज नवंबर। नवंबर। नवंबर इसी तरीके से लिखते हैं ना? यस मैम। हाँ। एंड व्हाट इज द लास्ट मंथ? दिसंबर।
December, and we say in Urdu December. ठीक है, सही है ये? अब इसको फौरन अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि ये आपका होमवर्क है और आपको इसको गुड हैंड राइटिंग में साथ में लिखना है। इंग्लिश मंथ के साथ साथ में उर्दू भी लिखना है आप लोगों को। ठीक है मैम। अभी नहीं हुआ। हैव यू डन? कंप्लीट कर लिया आपने इसको? अरे आप मैं कान दो तू। ओके, वेरी गुड। मुझे एक बच्ची दिखा रही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मुझे इसको पढ़कर सुनाओ। स्टार्ट करो, पढ़ो बेटा इसको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेरी गुड, सही पढ़ा आपने। लेकिन बेटा कुछ जो महीनों के नाम है वो उर्दू में तब्दील हो जाते हैं, उनको अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे मई बोला जाता है, सितंबर सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर को नवंबर और दिसंबर को दिसंबर बोला जाता है। ठीक है, नाउ इट्स रीडिंग टाइम। अभी मैं लोगों को रीडिंग के लिए पेज ओपन करती हूँ। अब कौन सा बच्चा इसे पढ़ेगा? दिखाई दिया आपको ये? कुकू, कुकू। चलिए, कौन पढ़ेगा इसे? Cuckoo, cuckoo, what do you do? In April, I open my bill. In May, I sing all day. In June, I change my tune. In July, away I fly. In August, go, go, I must. वेरी गुड। और कोई ट्राई करना चाहेगा इसको पढ़ने के लिए? एंड हम करेंगे ट्राई। हाँ, पढ़ो बेटा। Cuckoo, cuckoo, what do you do? In April, I open my bill. In May, I sing all day. In June, I change my turn. In July, away fly. In August, go to must. Go, go, I must. Go, go, I must. बोलो बेटा इसको, go, go, I must. Go, go, I must. ओके। और कोई पढ़ना चाहता है? Anybody wants to read this poem? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स इसके अंदर हैं। इट्स अ वेरी सिंपल पोएम, बट आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट दिस बर्ड। जो कोयल परिंदा होता है, इसमें ये अलग अलग मौसमों में अलग अलग जगह उड़कर जाती है। यहाँ पर उसने अपने बारे में बताया है। कुक्कू से जब पूछा गया, कुक्कू कुक्कू व्हाट डू यू डू, यानी तुम क्या करती हो, तो उसने कहा इन अप्रैल माय बिल। बिल का मतलब यहाँ पर होता है, बताएगा बिल यानी क्या? बिल यानी चोंच। बिल चोंच को कहते हैं। तो ये कहती है कि मैं अप्रैल में अपनी चोंच खोलती हूँ। इन मई आई सिंग ऑल डे, और फिर मई के महीने में पूरा दिन मैं गाती हूँ।
आप लोगों ने देखा होगा जब आमों का मौसम आता है तो अक्सर वहां पर कोयल आती है, कोयल की कूक हमको सुनाई देती है, ध्यान दिया होगा आपने। ये बात। तो गर्मियों के मौसम में वो यहाँ पर जो गर्म इलाके होते हैं वहां पर कोयल होती है। सिंग का मतलब होता है गाना। सिंग यानी गाना, गाना। ठीक है, गाने को सॉन्ग कहा जाता है और जब उसी सॉन्ग को हम गाते हैं तो उसे कहा जाता है सिंग। आई सिंग ऑल डे, यानी यहाँ पर कोयल कह रही है, कुकू कह रही है कि मैं पूरा दिन गाते रहती हूँ। इन जून आई चेंज माई ट्यून। ट्यून का मतलब पता है किसी को? यस। हाँ बोलिए, क्या मतलब होता है बेटा? आवाज। आवाज। और कोई लफ्ज इसके लिए? जैसे कि अभी मैं अगर सिंपल आपसे बात कर रही हूँ, ये ट्यून है, या फिर मैंने जो पोएम पढ़ी थी वो ट्यून है? आपने जो पोयम पढ़ी थी वो। वेरी गुड। तो इसका मतलब सिर्फ आवाज नहीं होता, इसका मतलब तर्ज होती है, लय होती है, यानी कि किस लय में हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो वो लय कहलाती है ट्यून। ठीक है, यहाँ पे चेंज, चेंज के मीनिंग होते हैं तब्दील करना, बदली करना। तो जून में वो जो है अपनी ट्यून चेंज कर लेती है, यानी कुकू का कहना है कि वो अपने गाने की तर्ज बदल देती है जून में, क्योंकि अब बारिशों का मौसम शुरू हो गया है। अंसारी फहीम। इन जुलाई अवे आई फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है? स्क्रीन। का मतलब क्या होता है? उड़ना। फ्लाई यानी उड़ना, यानी जुलाई में वो उड़कर चली जाती है। और अगस्त में भी गो गो आई मस्ट, यानी उसको जाना ही होता है, वो चली जाती है अगस्त में। तो बच्चों ये इस पोएम के मैंने उर्दू में कुछ आप लोगों को बताया है कि ये एक्चुअल पोएम क्या है। अब आप लोगों को सेकंड होमवर्क देना है मुझे, ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क है। आपको करना क्या कि ये जो कुकू पोएम है इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करो। ओके। ट्रांसलेट करो, और जिस तरीके से यहाँ पर जो कुकू, डू, बिल, अप्रैल, ये सारे जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं, ट्राई करो कि आप जो उर्दू में इस पोएम को ट्रांसलेट करें तो लास्ट वर्ड जो उसका जो आखिरी के 2 अल्फाज होंगे दोनों लाइनों के, वो राइमिंग वर्ड आपस में, लेकिन उर्दू के राइमिंग वर्ड्स, क्योंकि उर्दू में लिखेंगे ना। तो कौन कौन ट्राई करेगा? कौन कौन ट्राई करेगा उर्दू में लिखने के लिए? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ट्राई करो इसको, बहुत ही मजा आएगा आपको इसको उर्दू में लिखने में। तो बच्चों यहाँ पर हमने अपनी ये पोएम फिनिश की है। अब आपको इस पोएम को उर्दू में ट्रांसलेट तो करना ही है, आपको इसको याद भी करना है। और एक बहुत ही ट्यून, जिस तरीके से कुकू अपनी ट्यून चेंज करती है, उसी तरह जिस ट्यून में मैंने पढ़ाया आप उसको चेंज कर दीजिए। आप अपनी कोई नई ट्यून बनाइए, चेंज कीजिए, और न्यू ट्यून से इसको पोएम को पढ़िए। बार बार पढ़ने से आपको ये पोएम याद हो जाएगी अच्छी तरीके से, और फिर आप जब इसको उर्दू में लिखेंगे तो और अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये पोएम सबको समझ में आई बच्चों? यस। और इसमें जो वर्ड्स दिए हुए थे वो आपको उसके मीनिंग समझ में आए? यस। महीनों के नाम याद हुए आपको? यस। हाँ। अब आपका तीसरा होमवर्क, हो सकता है आपको ये आता भी हो, लेकिन तीसरा होमवर्क देखिए, ये है कि आपको सारे महीनों के नाम सीक्वेंस में याद करना है, और न सिर्फ याद करना है बल्कि उनकी स्पेलिंग्स भी आपको याद होनी चाहिए। तो यह आपका तीसरा होमवर्क। तो मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया? फर्स्ट होमवर्क था उर्दू में मंथ्स के नेम लिखने का। उर्दू में आपको महीनों के नाम इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी लिखना है। दूसरा होमवर्क क्या था? इस पोयम को उर्दू में ट्रांसलेशन करना है। वेरी गुड। इस पोएम को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। और तीसरा और होमवर्क? राइमिंग वर्ड्स उर्दू में ट्रांसलेट। हाँ, और तीसरा होमवर्क क्या था? ये मंथ्स के नेम याद करना है। तीसरा होमवर्क ये था कि आपको ये सारी स्पेलिंग्स अच्छी तरीके से याद करनी है,
और उसको सीक्वेंस से लिखना आना चाहिए कि विच मंथ कम्स आफ्टर विच मंथ, यानी जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, इस तरीके से आपको उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेसन यहाँ पर फिनिश हुआ। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले लेसन में। अगला हमारा टॉपिक, इसके बाद आप अपनी बुक में देखिए कि अगला हमारा टॉपिक कौन सा हो सकता है इंग्लिश लेसन के लिए। ठीक है, होमवर्क अच्छी तरीके से कीजिए और उसे याद मैम। कोशिश भी कीजिए। खुदा हाफिज।